Friends, good evening to all of you. Good evening, Arush. Good evening, Samarth. Good evening, Harshvardhan, Aryan, Somdev. Good evening. So I hope you had a wonderful holiday break and all are refreshed to join back and start the new term, the new learnings that will be beginning from today. Even I am very excited after let's say 2 days break to continue the class. And So, as for the new rules that we have changed, from today for all your answers you'll be getting +1, even if it is right or wrong. That is the best part for you. Good evening, Ananya and Kushdeep. So, you'll be getting +1 for the answer, even if it is right or wrong. So, this is good for those actually who are in minus and who want to upgrade to plus. तो अगर 10 दिन भी आप 10 क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स लाइक 100 for you. Correct? 10 days, so it becomes 100 for you. So if you're in minus, you can come into plus from that. Or if you're in plus, you can increase even more with your scores. So this is a good thing for you. Okay, Aryan says timer. Of course, the timer will be there now because see, we need to understand one thing, that we have learned to drive a car now. And once you have learned to drive a car, after that you cannot drive with a speed of 20 or 30 in highway. We were driving at a speed of 20 or 30 when we were at ground, when we were learning. But now we have learned and we have come into the highway now, in the main road. Good evening, Pawan. So, you will get lesser time now, or probably 20 seconds or 30 seconds. Let's keep it to 30 seconds because I understand you need time to type it also. So I have a timer here. I'll be waiting for 30 seconds after giving the question, and then you'll have to translate it. And as I said, whether your answer is right or wrong, you'll be getting +1 for it. So that is a very good advantage for everyone, especially the ones who are running a little behind. Okay, so good for you all. Sorry, there was a call actually, so it got disconnected. Now I think I'm back. Yes, Harshvardhan, what is the question? You said one question. We have 3-4 minutes for all your queries. You can ask that. Then we'll start the class at 8:03 when few more people will join in. Yes, what question? Yes, Aryan, even you have one question. What is the question? Ask me. Here, they are calling again and again. Good evening, Tamanna. Yes, Aryan, जैसे कि रुको पहले हर्षवर्धन रुको. Let us clear all the doubts first, then we'll start. तो तुम्हारा ही माइनस से शुरू हो जाएगा. क्या मतलब? टॉप के साथ विद भी लगेगा. Means what is the full sentence? I'm talking with you. Okay, I'm talking to you. I'm talking with you. You means मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. I'm talking with you मतलब मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हूँ. It's a two-way communication. Two means मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ, तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ. So one word changes the whole meaning now. As you grow in this, it will become easy for you to understand all these things. सर आज मैं और तमन्ना क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि तमन्ना को डॉक्टर के लिए ओके रौनक. तो सॉरी, आपने कॉल किया, आप ही 2 बार कॉल कर रहे थे, मैं डेटा डिस्कनेक्ट कर रहा था क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही ना. आना गुड इवनिंग. दोनों सही है. आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टॉकिंग विद यू. बोथ आर करेक्ट. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट.
Kushdeep says something, sir. Subha. So you are about to change in the evening, no? Anna, good evening. Okay, Aryan, now it's clear. So you're supposed to change in the evening, right? So do that if you want to grow a little faster, or it will take some time for you. So who has not come? Shreya is not there. Ayushman is not there, and who else is not there from the class? Kana is as it is not coming to the class. So that's a different point. Alright, any more question if you have? Riyans is not there, yes. So any more question if you have? So I repeat it, I rephrase it again. Ananya is not there, okay? Harsh is not there. Yes, right. Good evening, Digvijay, good evening. Good evening. Okay, so I'll just revise it once more. For all your answers, you'll be getting +1, whether your answers are correct or incorrect. Irrespective of right or wrong, you'll be getting 1. So that is good. Correct, that is good for you to gain more points, to upgrade your scores. And in the meanwhile, I'll be telling you what is right, what is wrong. This is basically for us to... Yes, I'll tell you what is wrong. This is basically for us to be honest with ourselves. Now, since you won't have any minus points, better you just answer it whatever you know, whatever concepts you have clear till now. And then I'll be telling you the correct answer where you're making mistakes. I'll be pinpointing that also. Some ambulance is going on, so. Yes, Riyans, good evening. Good evening. Yes, Aryan. सर जैसे कि कई लोग गलत ही करते जाएंगे तो ओके गुड क्वेश्चन जैसे कई लोग गलत ही करते जाएंगे तो क्या तो कुछ नहीं +1 फिर भी देखो आंसर देने का +1 है चाहे सही हो चाहे गलत तो इसका मतलब कि आप जितने भी आंसर दे रहे हैं आपको +1 मिलना ही मिलना है करेक्ट अब इसमें क्या है कि whoever is in the class रेगुलर ही अपग्रेड जैसे कान आया श्री आया जैसे नहीं आ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका फिर उतना पॉइंट्स उनको नहीं मिलेगा रोज वैसे ही होगा as long as you giving answers you'll be getting +1 so that is a good part for you और इसके लिए अब आपको गूगल में यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है आप कंटिन्यू करते जाइए पॉइंट्स बढ़ाते जाइए पॉइंट्स देते जाइए और देखेंगे इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी टाइपिंग की एंड यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट फास्ट when you know that you know directly you have to give answers so what you do you will just revise all your lessons now after revising the lesson it will become easy for you and immediately you will start answering that all right Anna says yes okay any more question any more doubt yes Khushdeep आपका क्या था query let me check it out Priyas I'm just giving यस आर्यन जैसे कि आप क्वेश्चन देंगे ओके जैसे कि आप क्वेश्चन देंगे तो आप टाइमर चालू कर देना अच्छा कर दूंगा चालू टाइमर तुरंत चालू हो जाएगा वैसे भी तुम में से कई लोग हैं जो काउंट करना ही शुरू कर देते 30, 29 ऑब्वियसली बात है जो पहले आंसर देगा ही विल स्टार्ट काउंटिंग इट सो यू कैन डू दैट वे आल्सो once you have given the answer is correct you start counting it you know in a reverse way so automatically after 30 seconds but only one person not 2-3 people what happens when 2-3 people count together so it becomes confusing for them so they'll go for the last one who's counting the last one. So don't do that. It's just there's the point one person, he only will start the countdown. So that will be good for you all. So are we all ready? Shall we start? So this is your first question.
All right, the time has started. सीता एक मधुर गीत गाती है. In between the ones who are the new in the group, try giving answers also. You also get. तब तक मैं खुशदीप से बात करता हूँ. सर कल सुबह क्लास तो डेली है, तो भी लोग नहीं आते हैं. कभी आराधना नहीं आती, कभी वो नहीं आता है, क्या नाम उसका, नितेश, और बताते भी नहीं हो. Someone has given the answer, so start the countdown till the time they give the answer. Once it will reach to 1, it will be stopped. अच्छा, इसमें बाकी के जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे. जैसे अगर आपने गलती किया है, स्पेलिंग मिस्टेक किया आपने, या आपने कैपिटल की जगह स्मॉल से शुरू किया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, सो ऑल दोस थिंग्स विल बी द सेम. उसके पॉइंट्स कटेंगे आपके. अगर आपके गलत है दैट इज ओके. मतलब अगर ग्रामेटिकल आपने सही नहीं किया है, फ्रेमिंग विल डू, नो इशू. बट स्पेलिंग मिस्टेक अगर है आपका, सो उसके कटेंगे. मतलब बेसिकली आपको फ्री इसलिए है कि आप कुछ भी आंसर दें, आंसर आपके गलत भी रहेंगे तो भी आपका +1 रहेगा. और मेरे आंसर देने के बाद आप बताएं. और कौन था खुशदीप आज? और कौन था तुम्हारे साथ? और कौन थे आज? तुम आए थे, तुम्हारे साथ में कौन था और क्लास में? ओके, सो इट इज तो 2 लोग काउंट कर रहे हैं. आर्यन भी काउंट कर रहा है, समर्थ भी काउंट कर रहा है. आर्यन हैज रीच्ड टू, अब नाउ हर्षवर्धन हैज आल्सो स्टार्टेड. सो हर्षवर्धन का 18 है, समर्थ का 10 है, आर्यन का 8 है. सो यू डिसाइड. बाकी जो पब्लिक है आप डिसाइड करो किसका आपको लेना है काउंट, उस हिसाब से लो. सो आई सजेस्ट यू गो विद हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन अभी 17 पे पहुंचा है. जैसे आर्यन अभी 1 पे आ गया तो खत्म, उसका नहीं लेंगे. हर्षवर्धन अभी 17 पे पहुंचा था, फिर रुक गया, तो वेट फॉर हर्षवर्धन. तो ये भी आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता है. Since 3-4 people are counting, so nobody can object you. It's a time, like Samarth is saying time over, so we cannot go with that, क्योंकि हर्षवर्धन भी काउंट कर रहा है, आर्यन भी कर रहा है. तो पहले तीनों के काउंट हो जाए, फिर वो आंसर, तब तक उनके पास टाइम है. सो यही चीज हमको रोकनी है. समर्थ पहले से कर रहा है सर, उसी का ठीक है. तो बीच में लेकिन इन लोगों ने भी चालू किया ना, सो नो पीपल गॉट कंफ्यूज. तो उनको तो बताना पड़ेगा ना किसका सही है किसका गलत है. मान लो किसी ने भी ज्वाइन किया है, तो आना से नहीं कर पा रही हूँ. ओके, तो देखो खुशदीप अकेले थे ना तुम, यही तो बात है. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शिफ्ट टू 4 PM. शिफ्ट टू 4 PM, शेड्यूल इट अकॉर्डिंगली, यू विल गो वेरी फास्ट. अगर मैं आता भी तो वेस्ट जाता पूरा, कोई मतलब नहीं होता, कंटिन्यू कर नहीं पाते हम. हाँ, अशोक से सर अगली बार समय गिनती है. यू डिसाइड अमॉन्ग्स योरसेल्फ. जो भी all those who are the toppers, like 4-5 people, they are more concerned about the timing. कि कितनी जल्दी से 30 seconds हो और बाकी लोग आंसर ना दे पाए. Alright, so time is over, huh? For the first question, the time is over. Let's go with the question and answer. इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, एक्चुअली मैं बात करने में बिजी था. So question was, सीता एक मधुर गीत गाती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है और अफर्मेटिव है. सो सीता डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और सीता डज सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, और सीता सिंग्स मेलोडियस और स्वीट सॉन्ग. These are the 3 options that you have. So all are +1. समर्थ, मैं नाम बताते जाऊंगा, उनका ही करते जाना. जो नहीं यदि आंसर उनका तो नहीं मिलेगा. सो मैं नाम बोलते जा रहा हूँ. समर्थ +1, आर्यन +1. जो गलत रहेगा वो मैं तुरंत बता दूंगा. समर्थ का सही है, आर्यन का भी सही है,
सोमदेव का भी सही है +1. सीता डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग. दिग्विजय सीता डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग सही है आपका. फुल स्टॉप लगाइए उसके बाद. रियान सेज सीधा डज सिंग स्वीट सॉन्ग. तो आपने सीता को सीधा लिख दिया है. करेक्ट. तो आपने आंसर जरूर दिया है लेकिन आपका स्पेलिंग मिस्टेक में जाएगा ये. करेक्ट. सो सीधा नहीं लिख रहा था, सीधा लिख रहा था. सीता डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग. हर्षवर्धन से सीता डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग सही है +1. अनन्या सीता डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग सही है +1. आरुष से सीता डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग. वेरी गुड. आंसर भी सही है और सब चीज सही है. ओके, सो दिस मेनी पीपल ओनली हैव आंसर्ड इट. सही है, सबका सही है +1. अच्छा, आर्यन ने क्वेश्चन मार्क लगाया, बोल रहा है सोमदेव. तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. अब अगर ये होगा आर्यन तो देन दिस विल गो इन माइनस फॉर यू. देखो हड़बड़ी में आप ही लोग थे और आप ही का शुरुआत हो गया. 30 सेकंड्स का टाइम था आपके पास. कहाँ गया आर्यन का आंसर? कहाँ गया? यस आर्यन. सीता डज सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग लिख के आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है. सो ये माइनस में चला गया, आपका -2 हो गया क्योंकि दिस इज अफर्मेटिव, इट्स नॉट इंट्रोगेटिव. क्वेश्चन मार्क इज फॉर इंट्रोगेटिव. अच्छा, सोमदेव ने बताया आर्यन का, सोमदेव को +1 मिला एक्स्ट्रा. समर्थ और आर्यन का -2. सो फॉर ऑल योर आंसर्स यू विल बी गेटिंग +1. दैट्स ट्रू एक्सेप्ट दिस 2. ये जो 2 रूल है, मतलब अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बिकॉज वी कैन नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, वी हैव टू बी परफेक्ट ऑन दैट आल्सो. एंड इफ यू स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर्स, इफ यू आर मिसिंग योर एक्सक्लेमेशंस लाइक क्वेश्चन मार्क्स जहाँ पे जरूरी नहीं लगाया, सो देन दोज विल बी कंसिडर्ड. समझ बताया था नहीं? मैंने तो सोमदेव कश्यप का दिख रहा है. आप समझ बताया था क्या? हाँ, तो अब ठीक है, समर्थ बताया था, मैं समझ गया. एक मिनट, यहाँ पे लिखा है सर आर्यन भैया ने क्वेश्चन मार्क लगाया, बिल्कुल सही. लेकिन ये मेरे बताने के बाद बताना था आपको. आंसर जैसे मैं सबको आंसर बताया, मिस कर गया, फिर आपको बताना था. ठीक है, इसलिए सोमदेव जब बताया वो मैं तब तक आंसर बता चुका था. सो ही गॉट द पॉइंट. यू शुड हैव टोल्ड मी आफ्टर दैट. ओके, ऑलराइट. So I'll be giving you fast questions. You answer them fast and take your points. If I say हर्षवर्धन से, लेकिन सर इसमें तो रूल था कि सबको +1 मिलेगा, भले वर्ड गलत है या सही. करेक्ट, +1 ही मिल रहा है, गलत हो या सही. लेकिन एक्सक्लेमेशन जो है, क्वेश्चन मार्क और स्पेलिंग मिस्टेक ही नहीं होना चाहिए. आप ट्रांसलेशन गलत करो चलेगा, विल गो विद दैट. ट्रांसलेशन आप गलत करें, ट्रांसलेशन गलत है तो भी +1 मिलेगा. लेकिन आप जैसे क्वेश्चन मार्क लगाना था नहीं लगाए, या आपने कैपिटल लेटर से शुरू करना था नहीं किए, स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपके हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड. बाकी आप ट्रांसलेशन भले ही गलत करो, उसके लिए तो आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है कि इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि नहीं, इसको मैं कैपिटल से शुरू करूं कि नहीं, इसके लिए तो आपको जरूरत नहीं है. सो अब आपको आंसर जाके देखना नहीं है, तो वो टाइम आप इसमें दें 30 सेकंड्स में. और आइडेंटिफाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देते हैं. योर टाइम स्टार्टेड. Whoever will give the first answer will start the countdown from there. धीरे से फिर इसमें भी लागू करेंगे कि जो भी पहले आंसर देगा सही रहेगा तो उसका +2 वाला जो है इसमें भी लागू करेंगे इस वीक के बाद. So the people will be even more faster. At least the 4 or 5 toppers over there, they will be more faster. खुशदीप आपका भी सही है. सीधा सिंग स्वीट सॉन्ग. समर सेज
ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देते हैं. सोमदेव says Sabat, you can start counting also, so that in the meanwhile, because I won't be able to see the timer every time. I'm reading the answers. So the moment whoever gives the first answer, start the countdown there and there only. Now Digvijay says, okay, कंटिन्यू करें आप. दिग्विजय बहुत बढ़िया आपका चल रहा है ट्रांसलेशन, और यही मेन है. इसके बाद इसी को आप बोलेंगे. सो दिस इज मेन इशू. सीधा 20 पे आने समझ. Harshvardhan says speech on stage. Aryan says Prime Minister stands huh? Kushdeep, okay, good. तुम यार कुशदीप टाइम चेंज करो यार. you're very talented. I have seen you. Your grasping is very fast. You implement it immediately and you learn very fast. हाँ सब अब तुम ही कर रहे हो अभी काउंट, और कोई नहीं कर रहा. How do you do in that? Three, 2, 1. Okay, so all those who will be giving answer after this, आपको सही गलत बताएंगे, बट आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा. ओके, माइनस भी नहीं मिलेगा, बट पॉइंट्स नहीं मिलेगा. सो द क्वेश्चन वाज प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर भाषण देते हैं. समझ सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डज गिव स्पीच ऑन स्टेज. सही है. सोमदेव says the Prime Minister नरेंद्र मोदी does give speech on stage. ये भी बिल्कुल सही है. इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा सही है सोमदेव का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक है, एक ही है देश में, हमारे देश में एक ही है और स्पेसिफिक है. तो यहाँ पे आपको द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ये लगाना चाहिए. यहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना चाहिए. इट्स मोर फॉर्मल इंग्लिश. अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट यू सेड समाज इज दैट इज आल्सो करेक्ट, बट इट कम्स अंडर इनफॉर्मल वन. दिस इज मोर फॉर्मल. So the Prime Minister Narendra Modi does give speech on stage. सबका +1, सबका +1 रहेगा. So समर्थ, सोमदेव +1, दिग्विजय, Prime Minister Narendra Modi does give speech on the stage. ये भी सही है. आपने THA लिखा है. हर्षवर्धन, Prime Minister Narendra Modi does give a speech on stage. देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर एक भाषण देते हैं, ऐसा नहीं कहा. सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण देते हैं, ये था. सो यहाँ पे अ की जरूरत नहीं थी आर्टिकल की. हर्षवर्धन एनीवे, बट +1 एज पर द रूल. आर्यन आपका पूरा ही गलत है. आपने लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टैंड्स एट द स्टेडियम. मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खड़े हैं, ऐसे बोल रहे हो. जैसे वानखेड़े स्टेडियम हो गया या कोलकाता हो गया, तो आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खड़े हैं, बोल रहे नहीं, वो स्टेज पे भाषण देते हैं. तो आपका पूरा गलत है, लेकिन फिर भी आपका +1 बिकॉज यू हैव आंसर्ड इट करेक्ट. देखो उसका बेनिफिट आप ही लोगों को मिल रहा है. बल्कि मैं देख रहा था अनन्या और आरुष का पूरा सही था, कुलदीप का भी सही था. अनन्या सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डज गिव स्पीच ऑन स्टेज. सही है, करेक्ट. आरुष सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डज गिव स्पीच ऑन स्टेज. दिस इज आल्सो करेक्ट. कुलदीप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डज गिव स्पीच ऑन स्टेज. सही है, बिल्कुल. Riyan says Prime Minister Narendra Modi does give speech on stage. सही है. सोमदेव says हर्षवर्धन ने gives किया है give को. सर रियांस ने स्मॉल लेटर से शुरू किया है. अच्छा, तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे. हाँ सही है. रियांस को तो दिख रहा है, रियांस ने स्मॉल लेटर से शुरू किया है, तो रियांस आपका -2 हो गया. अभी ये +1 चला गया सोमदेव के पास.
और किसका बोले? हर्षवर्धन ने गिव्स किया बोले। अच्छा, कहाँ गया हर्षवर्धन कभी? हाँ सही है, आपने लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डज गिव्स, डज भी गिव्स भी, दोनों थोड़ी होगा। डज लगाए तो आपको गिव में एस लगाने की जरूरत नहीं है, या अगर आप हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं तो आप मेन वर्ब में एस या ईएस लगा सकते हैं। सो करेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय सोमदेव। देखो अपना एक पॉइंट तो उसने लिया ही लिया, 2 पॉइंट आपसे ही ले लिया, और आप उल्टा जल्दी करने के चक्कर में आपकी गलती हो गई। सो रियांश और हर्षवर्धन का -2 है समर्थ, और ये +2 सोमदेव को दीजिए। So people are highly in competition with each other. Nobody wants to leave any single point. So this is a good battle going on between the people. Now let me give a little bit tricky ones. ओके, मैं छोटे छोटे दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी जल्दी हो। इफ आई से राम सदा सत्य बोलता है, राम सदा सत्य बोलता है। गाइस लाइक द सेशन फर्स्ट, like the session fast and then continue, so it gives me also encouragement that there are people who are there. Now in between, okay, I'll tell this after the next question because this is a very easy one, so people will make it, they'll translate it very fast, very early, and whoever translates it fast, start timer, countdown, and once the countdown is over, after that if anybody is giving the answer, it will not be accepted. So Samarth says Ram does speak always true. Arup says Ram talking truth. Aryan says Ram always speaks the truth. In between, Samarth and Aryan, you both are counting. Only one person, whoever gives the first answer, will start counting. So currently 2 people are counting. They are again getting confused. Now it's up to them, who they'll decide which one to take. Some says Ram does speak always truth. Now both them stopped. When they count, both of them start counting, and when they stop, both of them stop. So it becomes even confusing for them. Forget sorry. Forget the audience, even it's confusing for them also. Khusdeep says Ram does speak always true. Ram speaks always truth, Harshvardhan says. So we have a mix of answers for this, but I can see that most of you and almost all of you. So Aryan has come now. For late coming, the rule is still the same. There is no change on that. Ram does speak only true, says Aryan. Ayushman. Alright, so it has come to 3 to Ananya. Ram does speak every truth. गलत है आपका, but you'll get +1 also. Every truth. हर सत्य को बोलता है नहीं, हमेशा सत्य बोलता है. Alright, so time is over. Let's see the correct answer for this. Ram सदा सत्य बोलता है. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो. Ram does always tell the truth, or Ram does speak truth always. These are the 2 answers. This way you can make. समर्थ आपने बोला Ram does speak always true. ऐसा नहीं बना सकते. Ram does speak always true. ऐसे नहीं बोल सकते. Ram is true. ऐसा बोल सकते हो आप. Correct? So यहाँ पर true नहीं, truth बोलना था. True मतलब सही है, truth मतलब सच्चाई, सत्य. Okay, true is a verb, truth is it can be noun. It's an idea. So you cannot say true, you have to say truth. But you'll get +1 because you have given the answer. And Aryan says Ram always speaks the truth. सही है.
You have framed it properly and answer is also correct. Ram always speaks the truth. So Samarth and Aryan, correct. Then Somdev says Ram does speak always truth. सही है. Khusdev says Ram does speak always true. नहीं. Ram does speak always truth. But you get +1. आपको मिलता है. Because you answered it. हर्षवर्धन says Ram speaks always truth. अब हर्षवर्धन का मैं ध्यान से देख रहा हूँ क्योंकि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक से बाकी लोग पॉइंट्स ले जा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा फोकस करके ध्यान से देखा. Ram speaks always truth, but इसने गलती नहीं की है. सही है, +1. आयुष्मान says Ram does speak सीपक लिखा है तुमने, SEEPK, and only true. गलत है, but you get +1 because you have answered it. देखा नए रूल का कितना फायदा हो रहा है लोगों को. अनन्या says Ram does speak every truth. नहीं, every truth नहीं, always truth. अब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि राम हर सत्य बोलता है. यहाँ पे राम हमेशा सत्य बोलता है, ये था. अनन्या लेट नहीं है, पहले आई थी मेरे ख्याल से. रियान says Ram does speak always true. गलत है, बट यू गेट +1 और आपका 0 के पहले आ गया था. सो करेक्ट. नाउ पीपल आस्किंग सर लॉन्ग, आर्यन इज सेइंग सर थोड़ा लंबा दो, एंड हाँ अनुष +1. ट्रिकी भी 2 बोल रहे हैं. अनन्या सेज, आहाना सेज Ram does कौन. ओके, आपने भी स्पीक की गलत स्पेलिंग लिखी है, बट यू गेट +1. देखो आना भी अब आंसर दे रही है क्योंकि उसको भी +1 चाहिए. ओके, समर्थ नोट करके रखना, आना भी आंसर दे रही है, उनका भी +1 होना चाहिए. हाँ दे रहा हूँ हर्षवर्धन, दे रहा हूँ, गिविंग मोर एंड आई विल गिव यू लिटिल ट्रिकी आल्सो. आज तो फर्स्ट डे तो थोड़ा इजी भी दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी बना के यू शुड गेट मोर पॉइंट्स. इफ आई से वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है. इफ यू कैन सी आई हैवंट चेंज्ड द ट्रैक. इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में दे रहा हूं ताकि आप थोड़े से उसमें स्पीड बढ़े आपकी, आप फैमिलियर हो जाओ. So I'm not changing it the tense currently, but I'll do this in a later stage, in the next class maybe. Someone says he does not take bath every day. And someone start counting. ओके, ध्यान रखिए जो whoever gives the first answer, जो भी पहला आंसर देते हैं वो उनके काउंट ही माने जाएंगे. अभी उनका जैसे ही 0 पे पहुंचे वो तो आफ्टर द answers will not be acceptable, and I think 30 seconds time is a much more time to write, understand and type it, because we have learned all the concepts now, and this is why we are doing the practice. वो पिक्चर आपने देखी है सुपर 30 पिक्चर पर आप देखिए 10 सेकंड बचे, 20 सेकंड बचे हैं. सुपर 30 पिक्चर आप देखिए, उसमें जैसे ही ऋतिक रोशन बच्चों को सिखा देते हैं, उसके बाद बच्चे अपना खुद का एक टाइमर सेट कर करते हैं कि 10 सेकंड्स है आपको लिखना है. 10 सेकंड्स में अपने आप स्लाइड्स चेंज होते जाते हैं. अगर फिल्म आपने अगर देखी है, मुझे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. मतलब इट विल गिव यू स्पीड, आपकी स्पीड बढ़ा देगा, वो सोचने की शक्ति बढ़ा देगा आपको. यू विल स्टार्ट थिंकिंग इमीडिएटली फास्ट. व्हेन यू विल थिंक फास्ट यू विल आंसर फास्ट. तो अभी वही चीज हो रहा है. अभी आई कैन सी दैट within 30 seconds people are, even Anna who's in KG2, even she is giving answer in 30 seconds. So ये उनके अंदर भी स्पीड आ गई है. This is what we wanted, and we wanted everyone to participate, whether you are right or wrong, we'll see it later. और आप गलत होके ही सही होंगे, एकदम से आप सही नहीं हो सकते. पहले आप गलत होंगे, फिर देर से आप सही होंगे. So हमको ये देखना है कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, हमको ये बस करना है. हमको we have to attempt, and later on we'll okay 5 4 3. So later on we'll just minimize all those mistakes. 3 2 1 0. So the question was, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, मतलब वह रोज नहीं नहाता है, ये आपको बोलना था. So समर्थ ने किया था he does not take
बाथ एवरी डे, सही है। इसमें जैसे फुल स्टॉप लगाना था, ये नहीं लगाया तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना था वो नहीं लगाते हैं, दैट इज अ एरर, क्योंकि इंट्रोगेटिव बिना क्वेश्चन मार्क के नहीं बनता, वी नो दैट, सो दैट इज इन रूल। जैसे इसमें समझते हैं फुल स्टॉप नहीं लगाया, दैट्स ओके, फुल स्टॉप लगाना था आपको, बट इट्स ओके, यू गेट +1। मतलब इसको आप नहीं बता सकते कि सर समझते फुल स्टॉप नहीं लगाया, इट्स ओके। सोमदेव सेज ही डज नॉट बाथ एवरी डे, ये भी सही है, +1। हर्षवर्धन सेज ही डजंट बाथ एवरी डे, सही है, +1। आरुष सेज ही डज नॉट टेक बाथ, नहीं, आप उसमें एवरीडे भी लगाते ना, एवरीडे या डेली भी लगाना था आपको, बट सही है, आरुष +1। आयुष्मान सेज ही डू नॉट टेक बाथ एवरीडे, सही बनाया आपने, लेकिन आपने डू लगा दिया है आयुष्मान। सिंगुलर में डज लगाते हैं, प्लूरल में डू लगाते हैं, तो यहाँ सिंगुलर था, आपको डज लगाना था, बट यू गेट +1। देखो आयुष्मान और आरुष का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और आहाना का, ये लोग आंसर दे रहे हैं और कंटिन्यू इनको +1 कम से कम जुड़ते जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको माइनस से निकाल के फिर प्लस की तरफ ले आएगा। सो दिस इज, और जो टॉपर है ऑलरेडी उनको तो पॉइंट्स मिल ही रहा है, सो इट इज गुड फॉर ऑल, इट्स विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। सो आरुष +1, आयुष्मान +1, बट आपको डज लगाना था। खुशदीप सेज ही डज नो बाथ एवरी डे, नहीं, ही डज नॉट बाथ एवरी डे होगा, नो नहीं लिख सकते, +1। आर्यन ही डज नॉट बाथ एवरी डे, आपने बी, हाँ सही है, BATHE लिखा है, सही है, बाथ, बाथ ऐसे भी लिखते हैं। अनन्या he does not bath every day, सही है, +1। रियाज he does not bath every day, +1। और समर्थ का 1 होने के बाद में आर्यन आपने फिर से काउंट किया 3 2 1 0, तो वो तो मतलब नहीं है। रियाज क्या बोल रहे हो सर, 12 से 10, अच्छा चले गए, नहीं वो 1 2 प्लस माइनस होते रहेंगे, बट अब मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। अच्छा, आर्यन से सर सोमदेव भैया पहले बता दिए हैं, क्या बता दिए हैं? अनन्या स्मॉल लेटर से स्टार्ट की है, नहीं ये सोम ने भी लिखा है सर, अनन्या स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, लेकिन ये पहले आर्यन ने बता दिया, तो मैं जाके चेक करता हूँ। और रियाज बोलता है सर आर्यन का स्टेप सेलिंग मिस्टेक, बात राइट देम है यार, तुम्हारी खुद की कितनी सारी गलतियाँ हैं, और वो सही था, BATHE। ओके, सो आई एम जस्ट चेकिंग फॉर अनन्या, अगर स्मॉल लेटर से शुरू किए होगे आप तो -2 और उसका +1 आर्यन को मिलेगा। यस, you have started with small letter, he does not bath every day, आंसर सही है, आंसर, बट लेकिन आपने स्मॉल लेटर शुरू किया, सो इट बिकम्स -2 for you and +1 goes to आर्यन। अच्छा, सोमदेव भैया पहले बताए थे, लेकिन तो अगर वो पहले बताए थे तो उनको मिलेगा, और आना आपका आंसर 0 के बाद आया, 30 सेकंड्स के बाद आया है, लेकिन आपने सही लिखा है, ही डज नॉट टेक बाथ, सही लिखे हो आप, लेकिन आपका 30 सेकंड्स के बाद आया, थोड़ा सा फास्ट लिखिए। ओके, सो आई एम गिविंग अ लिटिल लॉन्ग और अ लिटिल ट्रिकी वन। चलो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ, जिसमें आपको थोड़े से वोकेबुलरी की भी जरूरत पड़ेगी, बट द टाइम विल बी 30 सेकंड्स ओनली। ओके, इफ आई से क्या बादल हवा में तैरते हैं, whoever gives the first answer start। मैं हर क्वेश्चन के लिए जिसका आंसर पूरा सही रहेगा, एक्यूरेट, उसको पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से देख भी सकते हैं लास्ट में। बट जैसे अभी का क्वेश्चन है, ये मैंने पिन कर दिया, सो यू कैन जस्ट सी इट। तो अगर टाइप, अगर
मैसेजेस आ भी रहे हैं तो आपको क्वेश्चन दिखते रहेगा. So this is taking some time for the people. Someone says, "Do clouds swim in wind?" Count it. So others are taking time this time. Maybe they're. But again, I saw from 12 it became 8. So अब लोग तैरते के लिए गए होंगे पक्का. I'm 100% sure. कुछ मैं हूँ बोल के इस बार नहीं बोले, कुछ आगे मैं हूँ मैं था ऐसे बोलेंगे, लेकिन पक्का इस बार तैरते के लिए गए होंगे. So it is a human tendency, we cannot avoid that. I can see fluctuating it, 12, 8, 8, 12, 13, 14, 7, 8, like that. Somebody can do clouds, badal, swim in air. Clouds भी बादल भी. Also they can do clouds float in the air. Ayushman says do cloud float in air. यार आयुष्मान का आंसर सही है क्या बात. Aro says does cloud swim wind. दोनों काउंट कर रहे हैं, समर्थन आर्यन दोनों. Anya says, does cloud float in air? Jan says, do clouds fly in the sky? Who's counting actually, Samarth or Aryan? Samarth is at 4, Aryan is at 3. And Riyan started with 7. Alright, so Samarth had given the first answer. So, as per the rule, we'll take his counting. Alright. So the question was, क्या बादल हवा में तैरते हैं? So you got to do the clouds swim in the air. कई लोगों ने float लिखा है. Float. Float मतलब जैसे पानी के ऊपर I'm floating in the river. तो मतलब पानी के ऊपर मैं floating कर रहा हूँ. Correct? Swim मतलब तैराकी कर रहा हूँ. जैसे ऊपर रुका हुआ हूँ पानी में तो I'm floating. But when I'm swimming like this. Correct? But you'll be getting, this is it, you'll be getting +1. Anyhow, someone says do clouds swim in wind. -2, क्योंकि आपने question mark नहीं लगाया इसमें. Question पूछ रहे हो ना आप? You have started with a do. So you know that it's interrogative, that's why you started with do. So ideally you have to have a question mark in that. Without a question mark, interrogative is not interrogative, understand? So Samarth आपका -2 हुआ. Aryan says do clouds float in the air. गलत है लेकिन +1 because आपने आंसर दिया है. Float की जगह swim होगा, तैरना. सोमदेव +-2, आपने भी क्वेश्चन मार्क लगाया. Do clouds बादल swim in air. आपने भी क्वेश्चन मार्क लगाया. हर्षवर्धन do clouds float in the air. Do clouds swim in the air. +1 हर्षवर्धन. Because you have given answer. Ayushman, you haven't used a question mark. आंसर ठीक है, बट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना था. आरुष, आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना था. अनन्या, आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना था. रियाज, do clouds fly in the sky. आप fly बोल रहे हो, चिड़िया जैसे fly. तैरना, उड़ना नहीं, तैरना, उड़ना नहीं. But +1 because you have given answer. एक मिनट, let me check. क्वेश्चन मार्क लगाया आपने कि नहीं लगाया? नहीं, रियांश आपने भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. So that becomes -2 for you also. सोमदेव सर, अन्य ने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है.
हाँ, लेट मी चेक। अनन्या, आपका सिर्फ स्मॉल लेटर की वैसे ही गलतियाँ चली जा रही हैं। यस, यू हैव स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर, सो इट्स -2। मैंने क्वेश्चन मार्क का बताया था, बट सोमदेव ने -2 तो आपको ऐसे भी हो गया है, लेकिन जो सोमदेव ने स्मॉल लेटर का बताया है, तो समर्थ +1 सोमदेव विल गेट। हाँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं सर, कुछ दिन बोल सर लेट हो गया। किसमें लेट हो गया? आदिल सर, सोमदेव भैया आपके बताने से पहले नहीं, मैं अनन्या का बता चुका था। मैं पहले मैंने क्वेश्चन मार्क को पिन पॉइंट किया था, स्मॉल लेटर को मैंने नहीं देखा था। उन्होंने स्मॉल लेटर को बताया, जो मैं मिस कर गया था, सो ही गेट्स +1 फॉर दैट। I have mentioned the question mark and he has told about small letter, so it is okay. That's why I gets it. Okay, if I say, क्या बोल रहे हैं भैया? सर नहीं पहुंचे थे कुछ दिन, सर आंसर दे नहीं, आपने बताया उसके बाद। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने आंसर बता दिया था पहले, फिर उन्होंने उसका बताया स्मॉल लेटर का। ओके, इफ आई से तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो? नहीं, -2 होगा अनन्या, -3 नहीं होगा, -2 होगा। तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, या तुम अपना गृह कार्य कैसे करते हो भी बोल सकते हैं इसको आप। तुम अपना गृह कार्य कैसे करते हो, या तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो। नाउ इफ यू सी, वी आर स्टिल इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Only thing we have changed is from affirmative to we have come to interrogative. And as I can see, 1450 people are there. Should not get to 8-7 now, क्योंकि इसमें कोई difficulty नहीं है. Okay, someone says, how do you complete your homework? And I started counting also. So you have 30 seconds now. In between, we have 25 seconds. In between, there was somebody called Studio Mycene who had messaged me in yesterday's video. Maybe if you're watching me live right now, or if you watch the video after this. So he has mentioned, you have mentioned, thank you for your feedback. It's a wonderful feedback. I'll definitely consider and do it. One thing that you have started with that, I'm taking classes sitting at one place. So currently, Studio Mycene, this is in a pilot phase. We have just started going online. We have never had this before. So after a few days, maybe you'll have a wonderful experience. When we'll go with the whiteboard and we'll have everything there. So till then, I hope you're enjoying this. And this is basically one more thing. This is basically for a particular batch who comes offline class. They are practicing at this time. So why we have started this online, so that many other people who are Samarth, you are counting 13 twice. 13 दो बार आपने count किया. So why we have come online for this is because somebody not from our class or from somewhere else, if they are joining and learning from it, because there are so many people. Excuse me, because there are so many people who watch these videos after the class and they learn from it. No, so this is the reason why we have come online. Later on, when we'll have the actual portion, the chapter, that time we'll be live on a whiteboard and you'll be able to see everything. So now we have reached to 0. So that, and Ananya, you have given the answer after someone says 0. Correct? So the question was, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, या तुम अपना गृह कार्य कैसे करते हो. So difficult नहीं है, it's very easy. इंट्रोगेटिव है,
We can say हाउ डू यू डू योर होमवर्क और हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। देखो निपटाते हो मतलब खत्म करते हो, पूरा करते हो। ये हमारी लैंग्वेज है, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं यार कैसे निपटाते हो अपना काम, लाइक दिस। निपटाते हो मतलब वन बाय वन सारे काम को खत्म करना। ओके, करते हो वो भी सेम वही है। तो अपना काम कैसे करते हो, करते हो मतलब कंप्लीट करते हो, निपटाते हो, लाइक दिस। सो यू कैन से हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, सही है, +1। और हाउ डू यू डू योर होमवर्क, बोथ आर करेक्ट। और आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, कैपिटल लेटर से भी शुरू किया है, सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षवर्धन आपने भी कैपिटल लेटर से शुरू किया है और क्वेश्चन मार्क से खत्म किया है। हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, +1। सोमदेव आपने भी कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क बराबर यूज किया। हाउ डू यू डू योर होमवर्क, +1। रियाज हाउ डू यू डू योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर बिल्कुल सही है। आरुष आपका सही है। हाउ डू यू कंप्लीट होमवर्क में योर में लिखना था, बट यू गेट +1। वाई यू विल गेट +1? क्योंकि आपने कैपिटल लेटर से शुरू किया है और आपने क्वेश्चन मार्क भी प्रॉपर लगाया हुआ है। खाली आपको एक पर्सनल प्रोनाउन यूज करना था, पॉसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पॉसेसिव योर, आपका, तुम्हारा, अपना, खुद का, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो तुम्हारा, आपका, तुम्हारा खुद का, आपका अपना। सो योर, मेरा खुद का, मेरा अपना करेगा तो माई, उसका खुद का, उसका अपना, अगर बॉय है तो हिज, गर्ल है तो हर। तो आरोज यू गेट +1, ये कैपिटल लेटर है और क्वेश्चन मार्क। आर्यन हाउ डू यू डू योर होमवर्क, सही है, कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क। आयुष्मान आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बट आपने शुरुआत कैपिटल लेटर से किया है। हाउ डज यू कम आवर होम लिखे हो आप, और क्वेश्चन मार्क भी लगाया, आपका माइनस होता है। खुशदीप हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, सही है, SW शॉर्ट फॉर्म लिखे हो, सही, क्वेश्चन मार्क लगाया। अनन्या हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, आपने 0 के बाद आंसर दिया है, तो आपका नहीं पता में चला जाएगा, -3 होता है, नहीं पता का। समर्थ ध्यान दे, नहीं पता का -3 होता है। आहना हाउ डू यू कंप्लीट, सही है आपका, इतना सही है, लेकिन आपने भी 30 सेकेंड्स के बाद दिया है। तो वैसे आना को मेरे ख्याल से हमको 15 सेकंड्स और देना चाहिए, 30 सेकंड्स और देना चाहिए, because she is in KG2. Guys, understand one thing, a girl who's in the KG2, she is attending our live class every single day. That itself is a great thing. So उसको मेरे ख्याल से 1 मिनट देना चाहिए हमको। सो हमने समर्थ आप ऑनलाइन क्लास, कहते मेरा ऑनलाइन क्लास का स्कोर बता देना प्लीज, अभी नहीं जाने के पहले। हाँ, लास्ट के 5 मिनट्स अपन रखते हैं इसके लिए आज से, जहाँ पे जो ऑनलाइन का स्कोर है वो भी आप बता दिया करो समर्थ, क्योंकि कई लोग क्या है उसको भी नोट करते हैं, और जरूरी भी है नोट करके रखना आपको। अगर आपको नोट करके रखे हुए हैं तो आपको क्योंकि भी अपडेटेड रहना है। तो 5 मिनट पहले आप अपन जैसे क्लास में करते हैं वैसे ही। समर्थ बोल रहा है इतनी इज्जत सोमदेव भैया बोल रहे हैं सही है ना, इज बीइंग फॉर्मल टू यू। अभी नहीं जाने के पहले, मतलब अभी नहीं बता, जाने के पहले बता रहा हूँ। हर्षवर्धन बोला सर मेरा भी टोटल स्कोर बता देना ऑनलाइन क्लास का, मैं अपने स्कोर अपडेट करूंगा। सही है, एवरीबडी डज दैट। तो अब एक काम करेंगे, 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट पहले आप सबके ऑनलाइन क्लास के स्कोर भी बता दिया करें। तो वो क्या है, उसको लिख के रखेंगे कितना उनका स्कोर आज शाम को आपने 7 बजे पोस्ट किया है, उसमें इसको ऐड करके रखेंगे, ताकि कल जब 7 बजे फिर से आप पोस्ट करो स्कोर्स, तो वो भी बराबर टैली कर पाए कि हाँ ऑनलाइन में मुझे इतना मिला था, आज के होमवर्क में मुझे इतना मिला है, तो कल का और आज के मिला के मेरा स्कोर इतना होना चाहिए, इतना ही है। एंड गाइस लाइक द सेशन फर्स्ट, आई कैन सी मेनी पीपल आर देयर बट यू हैवंट लाइक्ड इट, लाइक द सेशन फर्स्ट। ओके, सो समर्थ अभी बता दो सबको स्कोर, ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड टू 53, 54। सो अभी आंसर बता दीजिए, सबके पॉइंट्स बता दीजिए। सोमदेव बोल रहे हैं छोटा हो या बड़ा भाई इज्जत सबको देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आर्यन बोल रहा है सर एक और नहीं यार, उसको बताना तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी तुम लोगों को, लास्ट पहला दिन है ना, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो स्कोर बता दो समर्थ, या फिर
इस क्लास के बाद इसमें वीडियो में स्कोर अपडेट कर दिया करो, बेस्ट है मैं तो बोलता हूँ। तो उसमें हमको यह क्लास के थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है वीडियो तो रहता ही है चैनल पे, उसी में जाके आज का ऑनलाइन अपडेट कर दिया करो, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स तो ऐसे भी ग्रुप में भेजते हो। टिल देन, जब तक आप स्कोर अपडेट कर रहे हैं समर, फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग अस live or who do watch us live, we've just started going online just for a month or so, and it's still in a pilot phase. We're just trying out how does it work, because the offline people, the offline students who come to offline class daily, they do practice at this time, and earlier we used to do it next day in the class. So now what we thought let's go online, because there are many people who can get benefit from it. Maybe you know the grammar portion, maybe you know the tenses, but you're not getting time to practice, or there is no mentor for you who will guide you where you're going wrong, where you're going right. So with this platform, at least you get an opportunity, you get a chance to translate these things. So if you watch it, do translate them, or even if you just keep watching it without any message, then also it's okay, as good as you're learning. So but I'll insist that you try translating it, so that we can tell you where you're going right, where you're going wrong, and then you'll understand gradually that eventually you'll start building up on your speeches also, and it will be very very helpful for you. So I think सबके answers आपने बता दिए. We still have 5 minutes. Who all have left? I can see there are 8 people. अनन्या पूछ रही मेरा आंसर, वो भी बता दो स्कोर। सोमदेव से समर्थ एक बार फिर से चेक कर लेना, मेरा ज्यादा होगा। आर्यन बोलो, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर। समर्थ मेरा गलत स्कोर किया है। अच्छा, आज का अभी ऑनलाइन का अनन्या पूछ रही मेरा खुशदेव बोलता सर क्वेश्चन बनाने में मजा आ गया, कंटिन्यू करो और मजा आएगा। इससे देखो तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी बढ़ती जा रही है। इस मेरे लगभग सारे आंसर सही थे, एक का अलावा मैंने बहुत लोगों की गलती भी बताया हुआ, 2-3 बताया हुआ, 3 पॉइंट उसका आपको मिलना था। We'll do one thing after the class, समर्थ, हाँ समर्थ, ओके, आफ्टर द क्लास इसी वीडियो में पॉइंट्स डाल दिया करो ऑनलाइन क्लास के। इसकी एक रूल बनाते हैं कल क्लास में। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, हैव अ डिनर एंड सी यू इन द क्लास टुमारो। विल कंटिन्यू दिस। अनन्या भी पूछ रही मेरा अनन्या का नहीं बता रहा हूँ, समर्थ आप अनन्या के ऊपर बता दो, और जस्ट पोस्ट द वीडियो, द पॉइंट्स इन दिस वीडियो आफ्टर द क्लास, ओके। See you, bye-bye.